Hello, dear learners. Hope you are doing well. So, how's the preparation going on? Is there something new which is left behind by me? Or you are having any updates about the exam? Because, as per my knowledge, there on the official website, the date is still 18th June. That means our exam is within a month. So, without wasting much of your time, let's get started now. Question number 51. Yes, part 1. Okay, let me introduce with the content. UGC NET 2020 History Paper 2. Our subject is History and Paper 2 Shift 1. So, part 1 is already uploaded and this is part 2. Question number 51. With regard to the Afghan polity, which of the following statements are correct? Afghan polity के relation में, okay? Unlike Bahlol, Sikandar Lodi started sitting on a throne. No noble could share the seat with him. He still believed in primus inter pares, first among equals. In order to impress the superior position of the Sultan on the minds of the nobles, the people he laid down elaborate rules for the reception of royal firmans in the distant part of the kingdoms. A highly efficient spy system kept the Sultan informed of all the developments in the kingdom and particularly of the activities of the noble. Choose the correct statement. So our correct statement is option C, A, C, D. Okay, option 3 है हमारा correct statement. It is about Sikandar Lodi. He was regarded as the most ablest, greatest and most successful Sultan. Okay, also known as Nizam Khan. Sikandar Lodi's other name was Nizam Khan, second ruler of the Lodi dynasty from 1489. Sorry, second है Sikandar Lodi died in 1517. Okay, 1489 से 1517 and he was succeeded by his child Ibrahim Lodi. So उन्होंने sitting on a throne practice start की थी, sitting on a throne. Then he, in order to impress superior position on the minds of nobles and other people, he laid down elaborate rules for the reception of royal firmans. When his firmans, that is the orders, were sent to distant land, दूर के places पर भेजते थे, then उनको receive करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, there were elaborate rules, defined rules that how you will welcome the royal firmans and everything. A highly efficient spy system kept the Sultan informed of all the developments in kingdom, particularly of the activities of the noble. Okay. So these were the Afghan polity. Regarding this were according to the Afghan espionage system, a very highly efficient system was there. जो जासूस वाला system होता है, जो activities पर नजर रखता है किसके? सुल्तान के. Okay. चलिए. By the way, Sikandar Lodi accepted as the greatest Lodi Sultan and he established law and order. He was brave. He encouraged agriculture and trade, which resulted in economic prosperity. He enhanced the glory and power of the king. Impartial justice के लिए माना जाता था उन्हें. Okay, proper accounts of their income of every noble. Then he was a great scholar, patronized men of learning. Scholar भी थे. Okay, उनके बारे में ऐसे बहुत सारी चीज़ें. एंड जो हमारा ये वाला स्टेटमेंट है ना, ही स्टिल बिलीव्ड इन प्राइमस इंटर पैरिस, ये इनका नहीं है, ये इनके फादर का है, बहलोल लोदी का है. ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 52. Malik Ambar brought revolutionary changes in the agrarian and revenue structure of Nizam Shahi kingdom. In this context, which of the following provisions are correct? Malik Ambar abolished the farming of land revenue collection. He initiated a system of land survey, that is Nazar Pahani. Okay. Under Nazar Pahani, land was divided into Bhagat and Nabud. Maximum rate of land revenue was decided between 1/4 and 2/3 of the produce on different classes of the soil. So which are the correct statements? It is option A, B, D. वापस से C है A, B, D. ठीक है. He abolished farming of land revenue collection. He initiated land survey Nazar Pahani and maximum rate of land revenue was 1/4 and 2/3. Okay, of the produce on different classes of the soil. So our correct answer are A, B, D. Malik Ambar, an African slave who turned warrior. फिर उनका आगे जाकर प्रमोशन भी होता है. So there is also during the MSZ videos we have discussed, he named the modern city औरंगाबाद, अभी जो संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, छत्रपति संभाजी नगर इन महाराष्ट्र. इट वॉज नेम्ड बाय मलिक अंबर एज औरंगाबाद. ओके, एक्चुअली नॉट औरंगाबाद, ये औरंगजेब ने बोला था, उन्होंने भी एक नेम दिया था. ओके, वो मुझे कमेंट्स में बताइए. मैंने बताया है, पूरा हिस्ट्री बताया हुआ है उनके बारे में. लेट अस डिस्कस इट इन कमेंट्स. सो he did not provide scope for revenue farmers. He tried to establish direct contacts through hereditary village officials. उन्हीं का जो मेथड था वो किसने आगे जाके फॉलो किया था? शिवाजी महाराज ने.
Okay, during his reign he introduced the system of nazar pehani, that is glance survey, and he also controlled revenue free and hereditary lands, और जो रेवेन्यू शेयर था 1/4 and 2/3. ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे. Question number 53. Which of the following statements are correct about Parvanchas of the Mughal period? It was the official term for the rescripts of the ministers, grandees of the Mughal Empire. It does not require the royal seal. They were issued in accordance with the previous order of the emperor. During the early period of Mughal dynasty, Parvanchas were not issued for stipulated salaries of the begums. So, correct answer is A, B, C. Regarding Parvanchas, it was the official term for the rescripts of the minister, grandees of the Mughal Empire. Did not require the royal seal and were issued in the accordance with the previous order of empire. Okay. यूजुअली किसे कौन इशू करता था परवंचास को? किंग टू द ऑफिशियल्स इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन, सिमिलर टू द फरमान्स. इट वॉज लाइक फरमान. सो इट वॉज अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट विदाउट द रॉयल सील एंड ड्यूरिंग द पीरियड दे वर इशूड फॉर स्टिपुलेटेड सैलरीज ऑफ बेगम्स एंड प्रिंसेस ऑल्सो. ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 54. विथ रिगार्ड टू दाग सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Abdul Hamid Lahori says that it was the law of the empire that those mansabdars who had jagirs in any of the province of Hindustan and posted anywhere in the empire were to bring to the muster horseman equal in number of 1/3 of their sawar rank. If they were posted in Balkh and Badakhsha, they had to bring 1/5. This rule, Balkh and Badakhsha, was later applied on to all those posted in the Kabul province. Khulsat us Siyaq, written in later years of Aurangzeb's reign, confirms this law. So our answer is B, C, D. Option D, B, C, D are the correct answer. किसके बारे में बोला हुआ है इस यहाँ पर? Dag system. Regarding Dag system, so it was introduced by Alauddin Khilji. Dag, which means mark, was made on the cavalry horse, identifying it as royal or approved horse. Okay. Then this was to check the malpractices of changing royal or approved horses with those of low quality. Good quality horses were required for the military purposes, so therefore they were checked before taking it into consideration. So बाद में अकबर ऑल्सो इंट्रोड्यूस द रैंक ऑफ जत एंड सवार इन मनसबदारी सिस्टम एंड उनको हॉर्समैन मेंटेन करने पड़ते थे, नंबर ऑफ हॉर्समैन मेंटेन करने पड़ते थे अकॉर्डिंग टू देयर रैंक. सो जो स्टेटमेंट्स है, इफ दे पोस्टेड इन बल्क एंड बदख्शा दे हैड टू ब्रिंग 1/5 ऑफ द सवार हॉर्समैन. ओके, उनके रैंक के अकॉर्डिंग. समटाइम फिर शाहजहां ने भी उनका नंबर रिड्यूस किया था, रिड्यूस द नंबर ऑफ सोल्जर्स केप्ट बाय मनसबदार. ओके, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल, ये शाहजहां ने इंट्रोड्यूस किया था. देन जो ये बुक है खुलसत उल सियक लेटर ईयर्स ऑफ औरंगजेब्स रेन कन्फर्म्स दिस लॉ. ये इज अ ट्रिटाइज ऑन द साइंस ऑफ नोटेशन, अरिथमेटिक एंड पब्लिक अकाउंटेंसी ऑन द वर्किंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. ओके, औरंगजेब के टाइम पर ये बुक लिखी गई थी. सो इसमें दिया हुआ है इसके बारे में इंफॉर्मेशन. चलिए, एंड ये बल्क बादशाह वॉज लेटर अप्लाइड टू ऑल पोस्ट इन द काबुल प्रोविंस ऑल्सो. 1/5 उन्हें रखने पड़ते थे हॉर्समैन अकॉर्डिंग टू देयर रैंक, एज पर देयर रैंक. The lowest Mansabdar commanded 10 soldiers and highest commanded 10,000 soldiers. ठीक है, 33 कैटेगरीज होती थी टोटल. सो ओनली द प्रिंस ऑफ रॉयल फैमिली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट राजपूत रूलर्स वे गिवन अ मनसब ऑफ 10,000. ये उनके डिस्टिंग्विश पॉइंट्स रहते थे. उनका रैंक ज़्यादा रहता था, इसीलिए उनके पास में ज़्यादा हॉर्समैन, ज़्यादा सोल्जर्स. क्वेश्चन नंबर 55. विथ रिगार्ड टू सिख गुरु गोबिंद सिंह, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? गुरु गोबिंद सिंह, द 10th गुरु ऑफ सिख्स, grew up to excel in both martial arts and spiritual leadership. He reinterpreted the Sikh ideologies to justify military action. Prince Muazzam, the governor of Kabul, reached an understanding with the Sikhs and gave them refuge. Prince Muazzam was subsequently ordered to expel the Sikh guru who had taken refuge in his province, but he refused to comply with. So हमारा correct answer option C, A, B, C. Okay. Guru Gobind Singh ji was the 10th Sikh guru, and he was very much active and was very much in excellence with the martial arts and spiritual leadership. Okay, so he succeeded his father Guru Tegh Bahadur ji. Guru Gobind Singh ji played an important role in molding Sikhism to its present shape. He founded the Khalsa, the Sikh warrior community, in 1699 and wrote important texts and introduced 5 Ks of the Sikhism. What are the 5 Ks of Sikhism? There is something very interesting about it. I want to know it from you, but let me know in the comments. Yes,
So Guru Gobind Singh Ji turned the Sikhs into a military sect. Then Prince Muazzam, the governor of governor of Kabul, reached understanding with the Sikhs and gave them refuge. Military brotherhood of Sikhs Khalsa was created by Guru Gobind Singh Ji. फिर उन्होंने जो ये लास्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है. Prince Muazzam subsequently ordered to expel Sikh Guru. Okay. Guru Gobind Singh Ji was the author of the Sikh work named Dasam Granth. ये उनकी बुक का नाम है. Question number 56. From the following statements regarding Indian National Congress, which one are the correct? As a movement, it incorporated different political trends, ideologies, and social groups or classes so long as they were committed to democratic and secular nationalism. The early nationalist leader did not organize mass movements but did carry out an ideological struggle against the oppressors. The early nationalist leaders fought against every infringement of freedom of press and speech. They struggled for separation of judicial and executive powers and fought against racial discrimination. All the statements are correct. A, B, C, D are correct. Okay. INC के रिगार्डिंग में है. INC इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड इन 1885 एंड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. ठीक है. What was the main aim of INC? To unite Indians from various backgrounds and regions under common goal of achieving self-rule. So, as a movement, it incorporated different political trends, ideologies, and social groups and classes, so long as they were committed to democratic and secular nationalism. Democratic way से और secular nationalism से associated groups को उन्होंने एक साथ लाया. Early nationalist leader did not organize mass movement but did carry out an ideological struggle against the oppressor. स्टार्टिंग में mass movements थे क्या? नहीं. गांधी जी के आने के बाद में mass movements थे. ओके. दो उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट ट्राई किया था बट वो इतने बड़े लेवल पर नहीं गया था जितना गांधी जी का सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, ये सारे थे. अर्ली नेशनलिस्ट लीडर फॉट अगेंस्ट एवरी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच. यस, उन्होंने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दिया था टू फाइट अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस. देन दे स्ट्रगल फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फॉट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके. चलिए, जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस चल रहे थे इंडियंस के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट भी उन्होंने आवाज़ खड़ी की थी. क्वेश्चन नंबर 57. विच ऑफ द फॉलोइंग अनपॉपुलर लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर इनिशिएटेड बाय लॉर्ड कर्जन? सो विच वे दिस? कलकत्ता म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स अमेंडमेंट एक्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट. सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बी सी. ए बी सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. Kolkata Municipal Amendment Act 1903 aimed to restructure the administration of Kolkata Municipal Corporation, and it was met with strong opposition and criticism from Indian nationalists. Then Indian Universities Act 1904 reform and modernize the higher education system in India by introducing a centralized structure and granting more control to the government. India's Official Secret Amendment Act 1904 strengthened the existing laws regarding official secrets and expand the government's control over dissemination of information. Okay. फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच के अगेंस्ट था ये लॉ, इसीलिए इसे भी काफ़ी ज़्यादा अपोज किया था. क्वेश्चन नंबर 58. विच ऑफ द फॉलोइंग पीजेंट लीडर्स इनिशिएटेड द ऑर्गेनाइजेशनल वर्क अमॉन्ग द पीजेंट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया टू कन्वे देयर ग्रीवेंसेस टू ब्रिटिश गवर्नमेंट? कुंवरजी मेहता, ईशन चंद्र रॉय, भास्कर राव जाधव, शशिपथ बैनर्जी, द्वारकानाथ गांगुली. इट इज ऑप्शन ए एंड बी ओनली. कुंवरजी मेहता एंड ईशन चंद्र रॉय. ओके. Who was Kunwarji Mehta? Leading figure in Bardoli Satyagraha, along with Sardar Vallabhbhai Patel, led the peasant in a successful resistance against the increase in tax burden imposed by the British government. And Ishan Chandra Roy, Bengal के थे ये. He played a vital role in organizing Bengali peasants and agricultural laborers in 1920-30. Okay. चलिए. Question number 59. Which of the following were the features of Santhal uprising of 1855? The area of uprising was called Daman-e-Kho. Tribals made a determined attempt to expel the outsiders. Rebels proclaimed the complete annihilation of the alien regime. Tribals possessed latest weapon. Tribals were opposed by Gwalas and Lohars. तो जो डी एंड ई है ये तो बहुत ही वेग स्टेटमेंट्स है, इसीलिए ये रॉन्ग भी है. हमारे करेक्ट है ए बी सी. ठीक है. ए बी एंड सी, दिस आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. सो संथल जो अपराइजिंग था 1855 का टुक प्लेस इन द रीजन दमन-ए-खो विच इज़ इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, दोनों का पार्ट में आता है ये. संथल ट्राइब्स वे प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स इन द अपराइजिंग और
ये इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटी थी उसी रीजन से एसोसिएटेड. उनके पास में एडवांस वेपन्स नहीं थे, सिर्फ बो एरोज वगैरह उससे फाइटिंग कर रहे थे वो. एंड दे वर नॉट अपोज बाय द मिल्कमैन एंड द ब्लैक स्मिथ. ओके, इट वॉज द स्ट्रगल अगेंस्ट द आउटसाइडर्स टू एक्सपेल देम, उन्हें निकालने के लिए. चलिए आगे बढ़ेंगे हम. Question number 60. Which among the following statements are correct? The imperial and provincial legislative councils were entirely nominated bodies until 1892. Prior to the Indian Council Act of 1892, legislative councils were granted statutory powers of discussing budget and putting questions. The Ilbert Bill storm was the most extreme but by no means isolated expression of white racism. Morley Minto reforms of 1909 granted diarchy at the provincial level. सबसे पहले तो D है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बिकॉज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909 they did not granted the diarchy. Diarchy 1919 वाले इसमें आई थी. ओके, सॉरी, डायरकी केम इन 1919. क्लेम्सफोर्ड वाला जो रिफॉर्म मूवमेंट था उसमें आई थी. ठीक है, सो अब करेक्ट स्टेटमेंट इज डी, बिकॉज इसी में है, डी ऑप्शन नहीं है, बाकी तीनों में डी ऑप्शन दिया हुआ है. बाकी तो हमारा ए एंड सी क्या है? द इंपीरियल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वेर एंशायरली नॉमिनेटेड बॉडीज अंटिल 1892. Correct statement. Ilbert Bill storm was the most extreme but by no means isolated expression of white racism. Ilbert Bill 1883 by a British Indian official Frederick William Ilbert. Bill aimed to give Indian magistrates the power to try European offenders in criminal cases. मतलब पहले क्या होता था, इंडियन मैजिस्ट्रेट्स को अलाउड नहीं था यूरोपियन जो ऑफेंडर्स थे उन्हें पनिशमेंट देना, जो अनइक्वल ट्रीटमेंट के लिए लीड करता था उन्हें. मतलब जो यूरोपियंस है वो इंडियन को दे सकते, बट इंडियन यूरोपियन को नहीं दे सकते ऐसा था. और जो ये बिल था उसे फिर यूरोपियंस ने ही अपोज किया, इसीलिए वो कैंसिल हो गया था. Nehru's reluctance to reorganize states on the linguistic basis had the support of which of the following? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, EMS नमुंदिरप्पद, सी राजगोपालाचारी. ऑप्शन बी एंड डी. कौन कौन थे? वल्लभ भाई पटेल एंड सी राजगोपालाचारी. इन्होंने सपोर्ट किया था टू नॉट ऑर्गेनाइज द स्टेट्स अकॉर्डिंग द लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक बेसिस. ओके, वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर थे. एंड ये भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है टू यूनाइट इंडिया, टू यूनाइट द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया. देयरफॉर ही इज नोन फॉर द यूनिटी एंड देयर ही हैज़ अ बिग स्टैचू, दैट इज स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात. ठीक है. एंड सी राजगोपालाचारी, ही वॉज राजाजी, गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया. ही ऑल्सो सपोर्टेड नेहरू. एंड बाय बिकॉज इफ द basis of language is used, it could potentially lead to linguistic conflicts and division within the country. Therefore, इसे अपोज किया गया था. लैंग्वेज के बेस पर डिवीजन नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 62. फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग From among the following statement regarding the Swadeshi movement, which are the correct? The formal proclamation of Swadeshi movement was made on 7th August 1904. During this movement, a creative use of traditional popular festivals such as Ganpati and Shivaji festival and traditional folk theatre forms such as Jatras were extensively made. Indian National Congress declined to accept Swadeshi call at its session at Banaras in 1905. The technique of boycott included boycott of foreign goods, government schools, courts, titles and government services. हमारा correct answer है B and D only. Because it was accepted by the INC ने एक्सेप्ट किया, तभी तो वो मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ करने में. फॉर्मल प्रोक्लेमेशन कितने तारीख को आता है इसका? 1905 में. ठीक है, इट वॉज इन 1905 एंड द मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल. एंड हु वर द की पीपल? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल एंड लाला लाजपत राय. ओके, द टेक्निक वॉज बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, कोर्ट्स, टाइटल्स एंड गवर्नमेंट सर्विसेज. एंड उसमें उन्होंने शिवाजी फेस्टिवल एंड गणपति फेस्टिवल भी इंट्रोड्यूस किया था. ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 63. Which of the following statement regarding bias and objectivity are correct? So our correct answer is option A, B, C, D. Objective interpretations in history
writing are those which best meet rational criteria of accuracy, comprehensiveness, consistency and openness. If historical explanations occur accidentally by mistake through an oversight, one cannot call them biased but just wrong. Mistakes in biased history are motivated and not accidental. Biased discriminations are often unjust, presenting one-sided impression of their subject. Bias यानी कि किसी एक को ही support करना, that is supporting someone only one person. Okay, bias. There is like एक ओपिनियन के प्रति झुकाव होना इज बायसनेस. सो यहाँ पर क्या पूछा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग बायस एंड ऑब्जेक्टिविटी. सो ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, जो ये पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट है. बाय ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री रेफर्स टू इंटरप्रिटेशन दैट स्ट्राइव टू अडियर टू द रैशनल क्राइटेरिया. कौन से रैशनल क्राइटेरियाज है, उन्हीं को वो स्टिक करता है. एक्यूरेसी, कंप्रिहेंसिवनेस, कंसिस्टेंसी एंड ओपननेस. ओके, प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन विदाउट पर्सनल बायस एंड एनी इन्फ्लुएंस, ये है ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन. फिर हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन ऑकर्स एक्सीडेंटली बाय मिस्टेक थ्रू एन ओवरसाइट, वन कैन नॉट कॉल देम बायस बट जस्ट रॉन्ग. ठीक है, एक्सीडेंटल मिस्टेक्स होती है या कुछ ऐसा देखा जाता है तो उससे हम ओवरसाइट बोलेंगे, बायसनेस नहीं बोलेंगे. मतलब कि इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन और समथिंग. बायस कब आता है, जब कुछ इंटेंशनली कुछ किया जाता है. अगर एक्सीडेंटली होता है तो इट इज़ नॉट बायस, इट माइट बी रॉन्ग बट इट इज़ नॉट बायस. मिस्टेक्स इन बायस हिस्ट्री आर मोटिवेटेड एंड नॉट एक्सीडेंटल. यहीं पर अगर इंटेंशनली अगर आपने कुछ गलती किया है तो वो क्या होगा, मोटिवेटेड रहेगा, आपका पर्सनल कुछ उसके पीछे रीज़न रहेगा, ये एक्सीडेंट नहीं रहेगा. बायस डिस्क्रिमिनेशंस आर ऑफन अनजस्ट, प्रेजेंटिंग अ वन साइडेड इंप्रेशन ऑफ देयर सब्जेक्ट. ठीक है, सिर्फ एक ही साइड को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज बायस. क्वेश्चन नंबर 64, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग from among the following statements regarding early Orientalism of the British scholars in India, which one are correct? By establishing a linguistic connection between Sanskrit, Greek and Latin, William Jones privileged India with an antique equal to that of classical West. The fundamental principle of early Orientalist tradition was that the conquered people were to be ruled by British legal tradition. The early Orientalist study of Indian customs and laws was to show the barbaric state of Indian society. The beginning of Orientalist tradition led to the founding of Calcutta Madrasa and the Asiatic Society of Bengal. D statement is correct. बाकी तो हम देखेंगे. एंड हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है ए एंड डी. ओके, बाय एस्टैब्लिशिंग अ लिंग्विस्टिक कनेक्शन बिटवीन संस्कृत, ग्रीक एंड लैटिन, विलियम जोन्स प्रिविलेज्ड इंडिया विद एन एंटिक इक्वल टू दैट ऑफ क्लासिकल वेस्ट. दोनों में कनेक्शन बताकर उन्होंने इससे एक अलग कनेक्शन के साथ प्रेजेंट किया. एंड जो ओरिएंटलिस्ट स्टडी क्या होती है, स्टडिंग द ईस्टर्न साइड, ईस्ट एशिया स्पेशली इंडिया एंड उसके सराउंडिंग वाली कंट्रीज़ को स्टडी करना, दैट इज़ ओरिएंटलिज्म. सो लेड टू द फाउंडिंग ऑफ कलकत्ता मदरसा एंड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बिकॉज ये ओरिएंटलिज्म से ही इन्फ्लुएंस्ड होकर बने हुए थे. ओके, दैट प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग ओरिएंटलिस्ट स्कॉलरशिप एंड रिसर्च इन इंडिया, दिस टू इंस्टीट्यूशंस. देन ओरिएंटलिस्ट ट्रेडिशन इन इंडिया लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस. इसीलिए हमारे पास में ये दो ऑप्शंस करेक्ट है. देन जो लिंग्विस्टिक बेसिस वाला क्वेश्चन है वो विलियम जोन्स ने दिया है. अ ब्रिटिश स्कॉलर मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ ओरिएंटलिज्म, और उन्होंने ही सिमिलैरिटीज बताई थी बिटवीन संस्कृत, ग्रीक एंड लैटिन, जो मैंने कनेक्शन की बात की. दैट इज द कॉमन ओरिजिन एंड एंटिक ऑफ दिस लैंग्वेजेस. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 65, आर्कियोलॉजिकल साइट एंड द रीजन्स. फाइनली थोड़े छोटे क्वेश्चन आए, अदरवाइज द वीडियो विल बी वेरी बिग टूडे. आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जोरवे, कयथा, ओजियाना, रोजड़ी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. सबसे पहले जोरवे कहाँ से एसोसिएटेड है, कल्चर, महाराष्ट्र से. कायथा इज एसोसिएटेड विद मध्य प्रदेश, ओजियाना राजस्थान एंड रोजड़ी गुजरात. ओके, दिस आर द आर्कियोलॉजिकल साइट्स. जोरवे कल्चर, चालुक्योलिथिक कल्चर एसोसिएटेड विद महाराष्ट्र. अर्ली फेज कहाँ पर है, 1400 to 1000 BC. देन कायथा कल्चर, सांबाल, मध्य प्रदेश, उसी एरिया में. फिर आता है हमारा राजस्थान का ओजियाना, इट इज़ इन द भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान. ओके, 3000 to समथिंग 1500 BC. आहार कल्चर से भी एसोसिएशन है ओजियाना का. ओके, रोजड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट विच बिलोंग्स टू द इंदस वैली सिविलाइजेशन. ओके, राजकोट डिस्ट्रिक्ट में आती है ये साइट. एंड 2500 BC से 1700 BC तक एग्जिस्टेंस था. आगे बढ़ेंगे हम.
Vedic river and their current name. Askini, Parshuni, Sutudari and Vipas. We have already discussed about them. Option A is the correct answer. क्या आता है सबसे पहले? अस्किनी यानी कि चेनाब, परशुनी रावी. परशुनी इज वेरी फेमस फॉर द 10 Kings War, 10 Kings battle. सुतुदरी सतलज एंड विपस इज बायस और बियास. ओके. महाजनपद एंड देयर कैपिटल्स. अस्मका, छेदी, दक्षिण पांचाल, सोरसेन. कांपिल्य, मथुरा, पोतना, सुक्तिमती. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. अस्मका, पोतना इज इट्स कैपिटल. छेदी, सुक्तिमती, दक्षिण पांचाल, कांपिल्य एंड सुरसेना, मथुरा. ओके. टर्म एंड देयर मीनिंग्स. ये वाले क्वेश्चंस को ना नोट करके रखिए बिकॉज ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. अमीरे कोई, अमीरे अखर, बरीद, दाबिर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. सबसे पहले तो हम देखेंगे अमीरे कोही, ही इज द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एग्रीकल्चर. अमीरे अखर, ऑफिसर कमांडिंग द हॉर्सेस. बरीद यानी कि इंटेलिजेंस ऑफिसर और दाबिर यानी सेक्रेटरी. ओके, दिस आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. मोहम्मद बिन तुगलक ने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था अमीरे कोही. द पोस्ट ऑफ दीवान अमीर खोई, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज रिलेटेड टू देम. ठीक है. द एम ऑफ दिस डिपार्टमेंट वॉज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ कल्टिवेशन. फिर आता है हमारा अमीर अखर, दिल्ली सल्तनत ने ये वर्ड लिया था पर्शियन से. देन कैवलरी, कमांडर ऑफ कैवलरी. बरीद यानी कि इंटेलिजेंस ऑफिसर जो मुगल्स के टाइम पर थे और दबीर यानी कि सेक्रेटरी. पेंटिंग टेक्निक एंड देयर मीनिंग. खत, तरह, रंग, मीजी, शमसा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल्सो. हियर ऑल्सो ऑप्शन डी. खत यानी मार्जिन, तरह यानी स्केच, आउटलाइन और ड्राइंग, रंग मीजी मिक्सिंग ऑफ कलर और कलरिंग एंड शमसा यानी इल्यूमिनेटेड पेंट हेडिंग. ये रंग मीजी से हम एसोसिएट कर सकते हैं, इसे कलर से रिलेटेड होगा कुछ. ठीक है. अगर पता नहीं है तो पता कर लो, अभी टाइम है. ऐसे टर्म्स जो मिलते हैं नए नए उन्हें एक पेज पर लिख कर रखो. अगर अभी आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा है तो मैं हमेशा बोलती हूँ whenever you get any terms or any books and authors, just make separate pages for them. Like if you are getting any medieval author and there his book's name, just write it down and continue only their medieval authors and medieval books. Because when you do the revision, such notes become very handy and they help in revision a lot. Also, if you are writing the terms, so there are terms related to people. Like here we have seen the terms related to people. Amire koi, Amire akar, Barid and Dabir. And here the terms are related to things, painting. So just make separate notes about them. If it is associated with people, write all the terms associated with people together. If it is associated with anything, write them on a separate page. In this way, you will get to know a lot of meanings and a lot of new terms. And when you do the revision, they can help you a lot before exam. I have tried this method and it is really helpful. Question number 70. Source and deals with. So यहाँ पर क्या दिया है, ऑथर ने ही दिए है, उनका टॉपिक, वो किस टॉपिक के बारे में बात करते हैं ये पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 70. सोर्स क्या है? गुनियत उल मुनिया, फतवा जहांदरी, अदब उल हर्ब व शुजात, खज़ाइन उल फुतू. हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. ओके. गुनियत उल मुना इंडियन म्यूजिक से एसोसिएटेड है. अ ट्रिटाइज ऑन म्यूजिक कंपाइल्ड बाय फिरोज तुगलक, कंपाइल्ड ड्यूरिंग फिरोज तुगलक्स राइन. और इसके ऑथर का नाम अननोन है, बट इट वॉज रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ गुजरात, मलिक शम्स अल दिन इब्राहिम हसन अबू राजा. ओके. फतवा जहांदरी, जियाउद्दीन बर्नी, ये तो पता ही है. फतवा जहांदरी डील्स विद द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी. देन अदब उल हर्ब व शुजात, वी हैव रिटन द नेम ऑफ दिस ऑथर बिफोर ऑल्सो इन द प्रीवियस वीडियो. सो इट इज ऑप्शन सी, डील्स विद द आर्ट ऑफ वॉरफेयर. मिरर ऑफ द प्रिंसेस जॉनर में आता है ये. इसमें प्रिंस ने क्या करना चाहिए वॉर के टाइम पर, पीस के टाइम पर, ये सब कुछ दिया हुआ है. खजान उल फुतू, खैजन उल फुतू, अकाउंट ऑफ अलाउद्दीन टेकन कैंपेन, ऑप्शन 4. ओके. इट इज़ द बुक ऑफ अमीर खुसरो in which he describes the south campaign of Alauddin Khilji and Mongol invasion of India. Let me know in comments who is the author of Adab ul Harb wa Shujat. Question number 71. Newspaper and their editor. Free Hindustan, Indian Sociologist, New India and Commonwealth, Bombay Chronicle. Correct answer is option C. Free Hindustan
तारकनाथ दत्त, इंडियन सोशोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, देन न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट एंड बॉम्बे क्रॉनिकल बीजी हॉर्निमन. ठीक है. फ्री हिंदुस्तान ये फ्रीडम एंड पॉलिटिकल सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म जो ये उससे एसोसिएटेड था, उनका ऑर्गन था. एडिटर कौन थे इनके? तारकनाथ दत्त. ठीक है, या तारकनाथ दास एक्चुअली वो. द न्यूज़पेपर इशू इंक्लूड सेवरल अदर एडिटोरियल्स, आवर नेशनल लाइफ एट स्टेक, या फिर हिंदुस्तान से एसोसिएटेड जो भी चीज़ें थी वो सब कुछ इसमें आती थी. देन इंडियन सोशोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा, इन्होंने ये कहाँ स्टार्ट किया था? लंदन में. ही वॉज इंडियन सोशोलॉजिस्ट इन लंदन. देन कम्स एनी बेसेंट्स, इंडियन न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये भी इन्होंने कब स्टार्ट किया था? शी कैंपेन थ्रू अ न्यूज़पेपर न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ थ्रू पब्लिक मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए. बॉम्बे क्रॉनिकल बाय बीजी हॉर्निमन, इंग्लिश लैंग्वेज में आता था ये न्यूज़पेपर. स्टार्टेड बाय फिरोज शाह मेहता एंड इट वॉज एडिटेड बाय बीजी हॉर्निमन. ओके. एंड पॉलिटिकल अपहेवल्स, जो भी सिचुएशन होती थी उनके लिए ये पेपर था, मतलब जो भी अपडेट्स होते थे रेगुलर रिगार्डिंग द प्री इंडिपेंडेंट स्ट्रगल. क्वेश्चन नंबर 72, पेंटर्स एंड देयर पेंटिंग स्टाइल. रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जामिनी रॉय. हम देखेंगे सबसे पहले तो आंसर क्या है इसका. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके. सबसे पहले हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ब्लेंडेड कॉमन ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स विथ मैजिक ऑफ फैंटेसी, ऑप्शन 2. अब रविंद्रनाथ टैगोर comes with option 4, made a gripping interview of wit and sophistication in his painting. Nandlal Bose, option 1, learned lessons from various aspects of world traditions and blended them in his painting, world traditions. और Jamini Roy, option 3, developed a personal style that trained close to the village tradition. Okay. By the way, रविंद्रनाथ टैगोर के काफ़ी फेमस एक पेंटिंग है जो किससे एसोसिएटेड है? इट इज़ मदर इंडियाज पेंटिंग. ओके. क्वेश्चन नंबर 73, हिस्टोरियन एंड देयर वर्क्स, उनकी बुक के नाम. सी अगेन बुक्स एंड ऑथर्स एंड दिस आर द मॉडर्न हिस्टोरियंस. जॉन विलियम के, एडवर्ड जे थॉम्सन, एस.एन. सेन, जॉर्ज मैकमन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. जॉन विलियम के, इनकी बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर. एडवर्ड थॉम्सन, द अदर साइड ऑफ द मेडल. एस.एन. सेन, 1857. जॉर्ज मैकमन, द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव. ये सारे 1857 से एसोसिएटेड है बुक्स. एंड ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं तो आपने थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना चाहिए. जस्ट मेक नोट्स अबाउट देम. बाकी डोंट मेक नोट्स ऑन एनी अदर थिंग बट टर्म्स, बुक्स एंड ऑथर्स, दिस टू आर वेरी वेरी नेसेसरी. In 2022-23 videos you will also see there are names of some films. The questions are really difficult, so you can solve it as there is no negative marking. If you know, it is very good thing. If you don't, you can just try it. But if you know any of the book and author name, why you have to lose the 2 marks for the questions which you might have been known? Because such questions repeat. थोड़ा ध्यान से देखने का काम है, बाकी कुछ नहीं. अपराइजिंग एंड देयर लीडर्स, रामोसी अपराइजिंग, कोल अपराइजिंग, कच्छा नगास अपराइजिंग, ओरन्स अपराइजिंग. इट इज़ ऑप्शन ए. ठीक है. रामोसी अपराइजिंग के कौन थे? चित्तूर सिंह लीडर. कोल अपराइजिंग लीडर वॉज बुद्धा भगत. देन कच्छा नागास अपराइजिंग और काचा नागास अपराइजिंग के लीडर थे संबोधन, ऑप्शन 4. ओरन्स अपराइजिंग लीडर वॉज जतरा भगत. ठीक है. रामोसी अपराइजिंग कब हुई थी? 1822 में अंडर लीडरशिप ऑफ चित्तूर सिंह. पीपल हु वेर सर्व्ड इन द लोअर रैंक्स ऑफ द मराठा आर्मी एंड पुलिस, उन्होंने ये रेबल किया था. एंड प्रोटेस्ट ऑफ और रिवोल्ट वे अगेंस्ट द हैवी असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड हार्श मेथड ऑफ इट्स कलेक्शन, सातारा एरिया में. ओके. कोल अपराइजिंग, छोटा नागपुर एरिया, ही लीडर वॉज बुद्धा भगत, 1829 to 39. इट वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द लैंड टेन्योर्स. देन कच्छा नागास वाला क्यों था? छाछर रीजन ऑफ आसाम इन 1882 एंड इट वॉज रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी. यूजुअली रेवेन्यू पॉलिसीज के अगेंस्ट रिवोल्ट्स काफ़ी ज़्यादा हुए थे. देन ओरन्स अपराइजिंग, it is also known as Oron Tana Vagat movement, tribal uprising of Orons under Jatra Oron. Okay. He advocated that Oron religion should be freed of evils like ghost hunts and exorcism, believe in birds or evils, bhoots or evil spirits, animal sacrifice and liquor drinking, and advocated vegetarianism, austerity and restraint.
ट्राइबल रिलीजियस मूवमेंट गेव वे टू अ नो रेंट पेमेंट कैंपेन ऑल्सो। आगे जाके पहले रिलीजियस मूवमेंट था, फिर उसमें आगे जाकर रेवेन्यू वाला पार्ट भी आ जाता है। अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग चोला किंग्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आते हैं राजा राजा वन, देन कम्स राजेंद्र वन, देन कम्स वीर राजेंद्र एंड देन कम्स कुलोतुंगा वन। अभी राजा राजा तो हमें पता ही है, ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ चोला एम्पायर। ओके, ये इनका टाइम पीरियड क्या आता है 985 से, एक्चुअली हम ऐसा नहीं बोल सकते 9 से 10 सेंचुरी, 10th 11th सेंचुरी, हमें डेट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, हम लिख देते हैं 985 टू 1014 AD। ठीक है, देन कम्स राजेंद्र वन, इनका टाइम पीरियड आता है 1014 टू 44। फिर आते हैं हमारे वीर राजेंद्र 1063 टू 70 एंड देन कम्स कुलोतुंगा 1070 टू 1122। ठीक है, तो सबसे पहले राजा चोला, द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ चोला एम्पायर। He fought many battles with the Chalukyas in the north and Pandyas in the south, built the Brihadeshwara temple in Tanjore dedicated to Lord Shiva and Buddhist monastery at Nagapattinam। ठीक है, फिर राजेंद्र आते हैं, उनके बेटे राजेंद्र चोला। कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मिलिट्री जनरल्स, रूलर एंड मिलिट्री जनरल ऑफ साउथ इंडिया। वही उन्होंने फिर उनके फादर की पॉलिसी भी कंटिन्यू की थी। ही डिफीटेड जयसीमा, 2 ऑफ द वेस्टर्न चालुक्यास एंड रिकॉग्नाइज द बाउंड्री बिटवीन चौलास एंड चालुक्यास। और उन्होंने एक बहुत फेमस सिटी फाउंड की है, इट इज़ गंगईकोंडा चोलापुरम, एंड कंस्ट्रक्टेड द रामेश्वरम टेम्पल इन द सिटी। ठीक है, ही एज्यूम्ड मेनी टाइटल्स लाइक मुदीकोंडन, गंगईकोंडन, कदरामकोंडन एंड पंडिता चोलन। उन्होंने शिवा टेम्पल भी बिल्ड किया है गंगईकोंडा चोलापुरम में। फिर आते हैं वीर राजेंद्र, उन्हें ही कैरिड आउट सम सक्सेसफुल कॉन्क्वेस्ट इन श्रीलंका एंड मल्या। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी टू विक्रमादित्य 4। चोला एंड चालुक्य के बीच में अलायंस एस्टैब्लिश किया था। फिर कुलोतुंगा 1, द एक्सॉल्टर ऑफ हिज रेस, ऐसा उन्हें उनके नाम का मीनिंग है। ठीक है, ही डिड नॉट बिलोंग टू द मेन लाइन ऑफ चोलास बट वॉज रैदर अ प्रिंस ऑफ ईस्टर्न चालुक्यस। पर उनकी जो हिज एक्सेशन मार्क द न्यू बिगनिंग एंड रस्ट अ पीरियड ऑफ इंटरनल पीस एंड बेनेवोलेंट एडमिनिस्ट्रेशन। उनके जो फादर थे वो चालुक्य से एसोसिएटेड थे, बट अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस एक लीगल हायर नहीं था, इसीलिए उन्हें चोला डायनेस्टी का कंटिन्यूएशन लेकर आए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76। इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्ट अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। ठीक है, हमारा आंसर है BC AD। तो सबसे पहले भूमरा, भरूच, जगहपट्टा और तंजपुर। भरूच आता है मध्य प्रदेश में आता है ये साइट। इट इज़ अ साइट इन मध्य प्रदेश बिलोंगिंग टू द शुंगा पीरियड मिड 2nd सेंचुरी BCE। ओके, ये वर्ड ध्यान में रखो, BCE। ठीक है, इट हैज़ बिन लार्जली डिस्ट्रॉयड बट रिमेन्स आर प्रेजेंट ऑफ रेलिंग्स एंड एंट्रेंस गेटवेज इन इंडियन म्यूजियम इन कोलकाता। It is the beginning tradition of Buddhist narrative, relief and decoration of sacred buildings. Then जगहपट्टा आता है which is in आंध्र प्रदेश, अमरावती के पास में आता है। Greatest Buddhist stupa of जगहपट्टा belong to 2nd century BC. Over time the जगहपट्टा stupa turned into a mound with the locals called as धना बोडू और hill of wealth। ठीक है, फ्रेगमेंट्स बचे उनके where people used to build the houses. Then Bhumara temples belong to Gupta period. Shiva temple located at सतना मध्य प्रदेश। स्कल्पचर ऑफ फाइन क्वालिटी, इसीलिए उसका काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंस है। टेम्पल इज़ द सोर्स ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन गणेशा रिलीफ। गणेश जी की आइडल सबसे ओल्डेस्ट। स्टोन इज कार्व विद ग्रेट प्रिसिशन। वहाँ का स्टोन जो है भूमरा का काफ़ी अच्छे से कट किया हुआ है, उसकी कार्विंग भी काफ़ी अच्छी है। देन तंजावुर तमिलनाडु में है ये, एंड तंजावुर वॉज द कैपिटल ऑफ द चोला किंग राजा वन। ओके, एंड इनकी ग्लोरी कब अटेन हुई थी 10th सेंचुरी से 14th सेंचुरी। देखो सबसे लास्ट में आता है तंजावुर। AD
10th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी AD। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, सियूकी, मणिमेकालाई, सुतनीपता। करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए DACB। सबसे पहले क्या आता है? सुतनीपता, जो क्या है? वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक्स ऑफ पाली कैनॉन। It is one of the books most quoted in other Buddhist writing and it serves as an important source of information on early Buddhism, its cultural and religious milieu. ठीक है, according to the text, what matters is the moral enterprise of the Buddhist way, the realization of 4 noble truths and following the 8-fold path. इसीलिए ये सबसे ओल्डेस्ट पाली कैनॉन है, पाली बुक है। Then comes the Periplus of Erythraean Sea. William X. Koff wrote the Periplus of Erythraean Sea. Who is the author? William X. Koff. The book was written in Koine Greek language. It describes navigation and trading opportunities from Roman Egyptian port like Bernice along with the coast of Red Sea and with Africa and Sindh and India. ठीक है, text has been ascribed to different dates between 40 to 80 AD, but a mid-1st century date is now the most commonly accepted. mid-1st century में लिखी गई बुक है ये, ऐसा बोला जाता है। जो हमारी डी है ये तो बिफोर क्राइस्ट वाली बुक है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, आफ्टर क्राइस्ट 1st सेंचुरी। सीयू की रिटन बाय हुएन सैंग, जो कब आते हैं? हर्षवर्धन के टाइम पर 7th सेंचुरी 627 के अप्रॉक्सीमेटली ये इंडिया आते हैं। ही इज़ अ चाइनीज ट्रैवलर। उनकी बुक का नाम है सीयूकी। देन कम्स मणिमेकालाई रिटन बाय सिथाली सतनार इन 2nd to 6th सेंचुरी। ओके, मैंने एक गलती की, सी पहले आता है एंड बी बाद में आता है, ठीक है। 2nd to 6th सेंचुरी। ऑथर है इन दिस एपिक ऑफ तमिल लिटरेचर कंपेयर बुद्धिज्म विद अदर रिलीजन्स ऑफ साउथ इंडिया। ओके, चलिए, लेट मी राइट द डेट, प्लीज नोट डाउन द डेट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 78। अरेंज द फॉलोइंग मालवा सुल्तान्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। गियास शाह, नज़ीर शाह, मोहम्मद शाह घोरी, मोहम्मद खलजी 1। ओके, मालवा सुल्तान्स को अरेंज करना है तो सबसे पहले आते हैं हमारे मोहम्मद शाह घोरी, ऑप्शन C D A B, मोहम्मद शाह घोरी। देन कम्स मोहम्मद खलजी 1, देन कम्स गियास शाह एंड देन लास्ट इज नाजिर शाह। ओके, कब फाउंड किया था मोहम्मद शाह घोरी ने मालवा सल्तनत? 1402 में। दिलावर खान डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस फ्रॉम दिल्ली सल्तनत एंड एस्टैब्लिश्ड द रीजन ऑफ मालवा विथ इट्स कैपिटल एट मांडू 1402। इन्होंने इनकी राइन तब स्टार्ट की थी। देन कम्स मोहम्मद खलजी 1436 से 69। ओके, देन कम गियास शाह 1469 से इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर आते हैं नाजिर शाह 1500। ओके, चलिए। By the way, Muhammad Khalji was very famous for his one contribution to that time of society, that is the hospital. Yes, we have discussed in the part 1 the name of the hospital also, the term given for hospital. Let me know in the comments. अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 जाके देखिए, आपको वहाँ पता चल जाएगा कि हॉस्पिटल को एक नाम दिया गया है, उसे क्या बोलते हैं हॉस्पिटल मेडिवल इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 79। अरेंज द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। चश्मा ए नूर अजमेर, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, टॉम ऑफ इतमतुल दौला आगरा, बेगम शाही मॉस्क लाहौर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी DACB। चश्मा सबसे पहले आता है बेगम शाही मॉस्क लाहौर। ओके, बेगम शाही मॉस्क लाहौर ये कब हुआ था? 1611 ड्यूरिंग द राइन ऑफ जहांगीर। बेगम शाही मॉस्क, द मॉस्क ऑफ मरियम जमानी बेगम in the walled city of Lahore in 1611 to 14। फिर आते हैं हमारे चश्मा ए नूर अजमेर 1615, ये भी जहांगीर के टाइम पर ही हुआ है। चश्मा ए नूर स्ट्रक्चर्ड एज एन एक्सपेरिमेंट इन लिफ्टिंग वाटर एंड देन ब्रिंग इट डाउन इन द फॉर्म ऑफ एन आर्टिफिशियल वाटरफॉल। ओके, आर्टिफिशियल वाटरफॉल के जैसा बनाया हुआ था। देन कम्स इत्तिमत उद्दौला, जो कि जहांगीर के ससुर जी थे, फादर इन लॉ, एंड ही वॉज फादर ऑफ द वेरी फेमस एंड द मोस्ट फेवरेट वाइफ ऑफ जहांगीर, नूर जहां 1622।
Okay, and then comes Bibi ka Maqbara, the tomb of Rabia Durrani, erected by Azam Shah, the son of Aurangzeb, to commemorate his mother Dilraz Begum, who was titled Rabia Durrani. ठीक है. मिनी ताजमहल जो कि औरंगाबाद सिटी में प्रेजेंट है, महाराष्ट्र, 1668. चलिए क्वेश्चन नंबर 80. अरेंज द फॉलोइंग ट्रैवलर्स हु विजिटेड इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये है हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, DBAC. सबसे पहले आते हैं पिट्रो दे ला बेल, देन कम्स फेरे सेबेस्टियन मैनरिक, देन कम्स एबे कैरे एंड देन कम्स गिमेली कैरेरी. टर्म्स ये वर्ड सुने हुए नहीं है, आई नो दैट. सो जो हमारे डी है पिट्रो, इटालियन ट्रैवलर टू पर्शिया एंड इंडिया, whose letters dealing his wanderings are valuable as the full description. Okay, he reached Surat in 1623. 1623 he reached in Surat. Okay, then comes and ये कैलकट भी गए थे, कोईकोड जो अभी का कोईकोड है. देन मैनरिक सेबेस्टियन, ये कब आए थे? ही वॉज अ पोर्चुगीज मिशनरी एंड ट्रैवलर. ही केम टू इंडिया इन 16. ओके, ही ट्रैवल्ड इंडिया और ईस्ट एशिया फ्रॉम 1628 to 1643. हिज ट्रैवल अकाउंट्स वे फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1653. ओके, 1640 में ही इंडिया में थे. तो अभी हम कैसे कंसिडर करेंगे इसे कि ये अप्रोक्सीमेटली 1630s में आए थे. ठीक है, 1630s. Then comes Abbe Barthélemy Carey. Okay, 1672. A French expeditionary fleet reached the town and called Saint Thome on the east Coromandel coast of India. So ये कब आए थे? 1672. फ्रेंच पर्सन है ये, फ्रेंच ट्रैवलर और ईस्ट इंडिया कंपनी से एसोसिएटेड है. He travelled undercover through sultanates of Bijapur and Golconda, sometimes dressed as Persian merchant to avoid detection by agents. And for the Dutch in the India had to choose to hinder any French plan. वो छुपकर पूरा इंडिया ट्रैवल कर रहे थे, बीजापुर गोलकोंडा साइड्स. देन कम्स गैमेली कैरेरी, इटालियन थे ये भी, एंड ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ औरंगजेब 1695. ओके, 1695. ये दो शाहजहाँ के टाइम पर आते हैं एंड ये बाकी के दो औरंगजेब के टाइम पर आते हैं. आगे बढ़ेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 81. अरेंज द फॉलोइंग सईद सुल्तान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट. अलाउद्दीन आलम शाह, मुइजुद्दीन मुबारक शाह 2, खिजर खान, मोहम्मद शाह 4. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन CDBA. खिजर खान हु इज द फाउंडर ऑफ सईद डायनेस्टी एंड गवर्नर ऑफ मुल्तान. ओके, उन्होंने दिस ऑर्डर जो था तिमूर इन्वेजन का, उसका फ़ायदा उठाकर अपनी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था इन 1414. ओके, मुइजुद्दीन मुबारक शाह 2, सन ऑफ खिजर खान, और इन्होंने कब स्टार्ट किया था? 1421. इनकी राइन 1421. क्रश द लोकल चीफ्स ऑफ दोआब एंड द कोकर्स, फर्स्ट सुल्तान टू अपॉइंट हिंदू नोबल्स इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली. मुबारकबाद जो सिटी था इन्होंने डेवलप किया था ऑन द रिवर यमुना. देन कम्स मोहम्मद शाह 4, नेफ्यू ऑफ मुबारक शाह. कब आता है ये? 1434. ओके, एंड लेटर अलाउद्दीन आलम शाह 1445. एंड इन्हीं को थ्रोन पर से हटाकर बहलुल लोदी ने लोदी डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया था, अलाउद्दीन आलम शाह को. ठीक है, इन 1457. अगेन अरेंज क्रोनोलॉजिकली. ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट 9 और 11, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट. CADB, ऑप्शन बी. नोट डाउन द डेट्स. सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट 11, 1867. Okay, aimed at curbing free speech by introducing several procedural requirements. Then comes the Official Secrets Act 1889. Okay, ओरिजिनल वर्जन 1889 में आता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का. देन कम्स द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट
लॉर्ड कर्जन के टाइम पर आता है, टू अपॉइंट अ मेजोरिटी ऑफ फेलो मेट्स इन द यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट को अपॉइंटमेंट करने के लिए फ्री कर दिया था, और हमने और भी इसके फीचर्स पढ़े हैं। देन कम्स द 1 minute। Yes, comfortable. Then comes the Indian Press Act 1910. It empowered the local government to deregister any offending newspaper. सेंसरशिप लगा देना अगर कोई इंडियन को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलता है तो। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, अरेंज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉलोइंग एसोसिएशन क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट। महाजन सभा ऑफ मद्रास, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाहौर, पूना सार्वजनिक सभा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, DCBA। ओके, सबसे पहले आती है हमारी पूना सार्वजनिक सभा 1870। देन कम्स द इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाहौर 1876। देन कम्स राजमुंद्री 1878 एंड लास्ट में महाजन सभा ऑफ मद्रास 1884। लेट्स सी द फाउंडर्स ऑल्सो। महाजन सभा ऑफ मद्रास established by वीर राघवाचार्यर, S. रामास्वामी मुदलियार and P. आनंद चरलू। Okay, then Rajamundry, it was by Veerasilingam Pantulu. Then comes the Lahore, Indian Association of Lahore, Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose. And Pune Sarvajanik Sabha, S.H. Chiplunkar, Ganesh Vasudev Joshi and Mahadev Govind Ranade. Okay, arrange the establishment of following institutions chronologically starting from the earliest. इसका भी आंसर है ऑप्शन बी, DBH और DBCA। वो सबसे पहले आता है कलकत्ता मदरसा 1781। ओके, 1781 with by Warren Hastings. Then comes the Asiatic Society of Bengal 1784 ओके, बाय विलियम जोन्स। फिर आते हैं हमारे संस्कृत कॉलेज जॉनथन डंकन 1791। एंड देन कम्स 1800 में आता है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता बाय लॉर्ड रिचर्ड वेलेस्ली। इन्होंने स्टार्ट किया था फोर्ट विलियम्स कॉलेज कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 85, assertion and reasoning. So the people of Harappan civilization are said to have commercial links with the people of Tigris and Euphrates basin. There is no archaeological evidence to substantiate the hypothesis of trade links with Mesopotamia. A is correct but R is not correct. There are links. Tigris Euphrates river system जो कि साउथ वेस्टर्न एशिया में प्रिवेलेंट था, उनसे हरप्पन पीपल के ट्रेड रिलेशंस थे। देयर वर कमर्शियल लिंक्स एंड देयर वर आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑल्सो फ्रॉम द Mesopotamian region. Seals were found. Harappan seals were found. Okay. These inscriptions refer to trade with Dilmun, Magan and Melua. जो inscriptions मिलते हैं उससे पता चलता है। And the findings at Rakhigarhi suggest it may have played an important role in the context with Mesopotamia. Okay. Inscriptional evidences भी है और remains के भी evidences है. So R is wrong. Again, question number 86, assertion. The Gupta period saw the ascendancy. The Gupta period saw the ascendancy of Hinduism, especially Bhagavatism or Vaishnavism. Fahism, given the impression that Buddhism was flourishing during this period, it may be said first that 4 Buddha images were added at the 4 entrance of the great stupa of Sanchi. Nalanda also became a center of Buddhist education during this period. तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए में क्या बोल रहे हैं, हिंदुइज्म से एसोसिएशन, एंड बी आर में क्या बोल रहे हैं, बुद्धिज्म से। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, समटाइम्स व्हेन यू से फॉर सो लॉन्ग यू जस्ट मिस प्रोनाउंस वर्ड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। गुप्ता पीरियड वॉज द मोस्ट प्रॉस्पेरस पीरियड ड्यूरिंग इट्स टाइम एंड हिंदुइज्म वॉज वाइडली प्रैक्टिस ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, एंड वैष्णविज्म भी उस टाइम पर ग्रो हुआ था एंड शैविज्म भी ग्रो हुआ था। वैष्णविज्म मोस्टली इन नॉर्थ इंडिया एंड शैविज्म इन साउथ इंडिया। और जो बाकी आगे फाहिन जो आते हैं इंडिया में इसी टाइम पर, उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में बोला है उनके बुक में। क्वेश्चन नंबर 87, assertion and reasoning. The Peshwas imposed their writ over the Sardars, made over conquered territories to their own nominees, and relentlessly extended the circle of areas on which the Chauth and Sar Deshmukhi were imposed.
Reason: the Peshwas combined professed loyalties to two sovereigns, the Chhatrapati and the Mughal emperor, and actual autonomy from both. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट. ये दोनों स्टेटमेंट सही है. ओके, यहाँ पर क्या बोला है? Peshwa imposed their writ over the Sardars, made over conquered territories to their own nominee, and relentlessly extended the circle of areas on which Chauth and Sar Deshmukhi were imposed. Chauth and Sar Deshmukhi क्या होता है? Chauth 1/4 of the land revenue and Sar Deshmukhi additional levy of 10%. ठीक है, और ये मराठास का रेवेन्यू कलेक्ट करने का वे था. ओके, और ये वो जो उनकी टेरिटरीज थे और जो उन्होंने जो सरदार वगैरह उनके अंडर थे उनसे वो ये कलेक्ट करते थे. सो हेलो, यस. सो ये Chauth and Sar Deshmukhi were the taxes collected not in the Maratha kingdom but neighboring territories of the Mughal empire or the Deccan Sultanate. Peshwas combined professed loyalty to the two sovereigns. उनके टू सोवरेंस कौन थे? छत्रपति थे एंड देन द मुगल एम्पर. दोनों को भी वो मानते थे उनके ऊपर, बट एक्चुअल ऑटोनॉमी फ्रॉम बोथ. दोनों के पास में भी ऑटोनॉमी नहीं थी, वो खुद अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करते थे. ठीक है. Question number 88. Given below two statements, assertion and reasoning. It was within the political and cultural framework that Bharatendu Harishchandra created and developed his own brand of nationalist thinking and writing. Being a subject of British Raj, Bharatendu Harishchandra saw no contradiction in the coexistence of loyalty to the rulers and fierce patriotism. Option A. Both A and R are true. R is the correct explanation of A. Bharatendu Harishchandra कौन थे? ये was a renowned Hindi writer, poet and playwright, often regarded as the father of modern Hindi literature. उन्होंने एक रोल प्ले किया था इन डेवलपमेंट ऑफ हिंदी एज अ लिटरेरी लैंग्वेज एंड प्रमोटेड सोशल रिफॉर्म एंड नेशनलिज्म थ्रू हिज राइटिंग. ओके, उन्होंने एक ओन ब्रांड क्रिएट किया था ऑफ नेशनलिस्ट थिंकिंग एंड राइटिंग, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि दोनों भी जो चीज़ें हैं, लॉयल्टी टू द रूलर्स एंड फियर्स पैट्रियटिज्म, ये दोनों भी साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं. नो कॉन्ट्राडिक्शन इन द को एग्जिस्टेंस, मतलब कि दोनों साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं. ओके. As a subject of British Raj, it is possible that he maintained loyalty to the rulers while also expressing fierce patriotism. दोनों भी मेंटेन करना उनकी ड्यूटी हो गई थी there, because he was the subject of British Raj. Question number 89. Colonial science assertion. Colonial science was inextricably woven into a whole fabric of colonialism. Reason: colonial science did not come in a neat package. The claims of universality and utility of science messed up its identity. Question number A. Answer A है इसका. A and R are true. R is the correct explanation of A. Reason: assertion: colonial science was inextricably woven into the whole fabric of colonialism. This means that the science played a significant role in the colonial project and was intimately intertwined with the processes, ideologies and institutions of the colonial rule. Okay. जो कॉलोनियल माइंडसेट था, आइडियोलॉजी था, जो रूल था, उसके साथ में कॉलोनियल साइंस वूवन था, यानी कि साथ में कनेक्टेड था. देन रीज़न क्या आता है? वाई कॉलोनियल साइंस डिड नॉट कम, जो ऊपर का है इसमें उन्होंने रीज़न में दिया है कि कॉलोनियल साइंस डिड नॉट कम इन अ नीट पैकेज. ओके, उन्होंने रीज़न दिया है कि वाई इट इज़ इनएक्स्ट्रिकेबली वूवन, यानी कि जोड़ा हुआ है, कनेक्टेड है. इट स्टेट दैट इट डिड नॉट come in a neat package. It was not a purely objective and value neutral pursuit but a colonial ideology और colonial way, मतलब कि जो colonial mindset है उससे influence है. Okay. The reason helps to explain why science becomes so intertwined with colonialism. Reason में दिया हुआ है ना, claims of universality and utility of science messed up its identity. ये है colonial science का association विथ कॉलोनिज्म या फिर साइंस का एसोसिएशन. अब आता है हमारा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन. PDF आई विल प्रोवाइड एंड आपको सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर जाना है, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई, उस पर जाना है, चैनल को ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा. ओके. और अगर कुछ डाउट है तो मुझे आप उसी के नीचे जो कमेंट आता है उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या अपना डाउट बोल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 90. हाउ मेनी एज काउज एंड हाउ मेनी हेलीफर्स इन वन herdsman assigned in the above passage? यह है 20 एंड 20 रिस्पेक्टिवली. ऑप्शन बी, यह पैसेज में दिया हुआ है. ओके, नो टू वरी, आप पैसेज आराम से पढ़ लेना. चलिए. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज देयर अ पेमेंट इन बोथ काइंड एंड कैश? फॉर विच पेमेंट इन बोथ काइंड एंड कैश?
the second category of responsibilities of the superintendent. Question number 92. Why were those who looked after milch cows not paid in milk and ghee? So that they do not deprive the calves of their share of milk. Okay. 93. How many categories of was the work of superintendent of cattle divided into? Total 7 categories. ये भी पैसेज में ही है. Question number 94. What are the work and entitlement of the hunter in the above passage? Looking after the milch cows in return for the cash wage. अब दूसरा पैसेज स्टार्ट होगा. The above observation is made by which of the following European traveler? Okay. ये है फ्रैंकोइस बर्नर. हम एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं. The Timorids governors and revenue contractors on their part reason in this manner, why should the neglected state of this land created uneasiness in our minds, and why should we expend our money and time to render it fruitful? We may be deprived of it in a single moment, and our exertions would benefit neither ourselves nor our children. Let us draw from the soil all the money we can, though the peasant should starve or abscond, and we should leave it when commanded to quit a dreary wilderness. तो ये स्टेटमेंट है, ये ऑब्जर्वेशन है फ्रैंकोइस बर्नर का, जिन्होंने फ्रेंच फिजिशियन जो आते हैं शाहजहां के टाइम पर. ओके. Bernier observation and writings provide valuable insights into the social, political and economic condition of the region he visited. In the passage, Bernier describes the perspective of Timorites, governors and revenue contractors regarding the neglected state of the land they oversee. Okay? And उनकी बुक का नाम क्या है? Travels in the Mughal Empire. Question number 96. By Timorites, the traveler refers to which of the following official? ये होते हैं जागीरदार. Timorites, ठीक है, जागीरदार को ये टर्म दिया था किसने? बर्नियर ने. Question number 97. On the basis of the above passage, above observation, which of the following historian has argued that the Mughal system of transfer of Jagir led to exploitation of peasantry that in turn created crisis in the Mughal Empire? ये है इरफान हबीब का स्टेटमेंट. आपको इरफान हबीब से मुग़ल इंडिया से एसोसिएटेड काफ़ी सारी बुक्स एंड काफ़ी सारा वर्क मिलेगा जो इरफान हबीब का है. ओके. ही वॉज अ वेरी फेमस हिस्टोरियन, मेडिवल हिस्ट्री हिस्टोरियन, एंड ही हैज़ गिवन द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुग़ल इंडिया इन 1963. उनकी ये बुक आई थी, उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है. Mechanism of collection of revenue that the Mughals had evolved was inherently flawed. Imperial policy was to set the revenue at highest rate possible to secure greatest military strength. पर इससे क्या हो गया था, जब जागीर वो देते गए, इन रिटर्न लैंड क्राइसिस होना स्टार्ट हो गए थे. क्वेश्चन नंबर 98. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मुगल जागीर सिस्टम? अंडर औरंगजेब जागीर्स वे मेड परमानेंट एंड हेरिडिटरी. यहाँ पर पूछा है नॉट. ओके. अल्तमगा जागीर जो था वो ट्रांसफरेबल था बट नॉट हेरिडिटरी. और वो किसके अंडर आता है? जहांगीर के अंडर. सॉरी, वो हेरिडिटरी था, नॉट ट्रांसफरेबल एंड हेरिडिटरी, बट वो आता था जहांगीर के अंडर, नॉट इन औरंगजेब्स टाइम. ओके. सी यहाँ पर दिया हुआ भी है अल्तमगा जागीर्स. चलिए आगे बढ़ेंगे. 99, and it is the last question. Which of the following chronicles of Shahjahan's reign mention that the practice of ijara became very common during Shahjahan's reign and that it was one of the causes of the ruin of peasantry? तो ये किसका है स्टेटमेंट? मोहम्मद सदिक खान. ऑप्शन डी, मोहम्मद सादिक खान. ओके. इजारा सिस्टम और रेवेन्यू फार्मिंग, जो रेवेन्यू सिस्टम था इन मुगल इंडिया. ओके. These villages, when peasant did not have resources available for undertaking cultivation or was owing to some calamity, cultivation could not be done, were farmed out on ijara. Revenue officials or their relatives were not supposed to take land on ijara. Okay. It was expected that revenue farmers would not extract more than the stipulated land revenue. जितना बोला है उतना ही रेवेन्यू उनसे लेना है, बाकी ज़्यादा नहीं लेना है. बट ये तो प्रैक्टिकल होना पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज आपको भी पता है करप्शन हर जगह होता है. और जो मोहम्मद सादिक खान है, क्रोनिकल्स ऑफ शाहजहांस राइन मेंशन दैट प्रैक्टिस ऑफ इजारा बिकम वेरी कॉमन ड्यूरिंग द शाहजहांस राइन एंड इट वाज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ रुइन ऑफ पीजेंट्री, क्योंकि ओवर एक्सट्रैक्शन कर रहे थे ऑफ रेवेन्यूज. चलिए
एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 100 आया नहीं है और क्वेश्चन नंबर 51 ही नहीं आया है, मैंने देखा है दूसरे PDF में. इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू द मोहम्मद तुगलक. ओके, तो हम इसी के साथ में हमारा वीडियो यहीं पर एंड करते हैं. टोकन करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो यहाँ पर आया नहीं है. अदरवाइज द होल PDF इज एज सच जो 2020 में आया था. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. होप यू लाइक इट. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे ना फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ना व्यूज़ बढ़ रहे हैं, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है आगे के वीडियोज़ बनाने का. तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.